Hello students, today we'll start with page number 20, chapter number 2, shapes and angles. Angle tester. How do we make angles equal angles? See, in our last session we saw that Rohini and Mohini both enjoy doing the same activities. So Shayla gave them a challenge to make a shape and they learn about angles. So now they are talking that how can they both make equal angles. So Shayla told them, let us make a angle tester. So angle tester is a tool with which we can test angle, right? We can measure angle. You also have an angle tester in your geometry box. It is called a divider. See, there is a picture of divider in your textbook also. You can see it on the screen. So how can we make this angle tester? Here it is. See, you have to cut two strips from a cardboard sheet. Fix them with a drawing pin or such that both the strips can move around easily. See, you can also use drawing pin, and you can also use nut bolt or anything is available at your home. You can make this angle tester. It is very easy. Rohini and Mohini went all around with the angle tester to look for different angles in their class. Rohini tested the angle of the maths book and the pencil box. Look at the tester. It has opened like the letter L. This is a right angle. We write it as L. See, this right angle and about the types of angle. I'll show you a slide for that. See, actually what is an angle? When two lines intersect each other, right? Or meeting point of two lines is called angles, right? Then what is the objective of angle? What does an angle do? An angle measures the amount of turn actually, right? So names of angles, there are so many there are some kinds of angles. As the angle increases, the name changes, right? So here is the type of angle. First is acute angle, is less than 90 degree. जो acute angle होता है वो 90 डिग्री से छोटा होता है, right? Next one is right angle, which that Mohini was talking about, जो L जैसा होता है, right? जिसको हम L की तरह लिख भी सकते हैं, तो वो होता है exactly 90 डिग्री, right? नीचे देखिए, टेबल के नीचे आपको एंगल्स दिए हुए हैं. फर्स्ट इज एक्यूट एंगल, जो 90 डिग्री से छोटा होता है. जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा उसका नाम चेंज होता जाएगा. तो लेस देन 90 डिग्री के लिए एक्यूट एंगल, एग्जैक्ट 90 डिग्री के लिए राइट एंगल, जो एकदम एल शेप का होगा, राइट? इट इज़ ईजी टू रिकॉग्नाइज राइट एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल, जो 90 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 180 डिग्री से छोटा, विच इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री. देन कम्स स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री एग्जैक्टली, राइट? जो स्ट्रेट एंगल होता है वो एग्जैक्टली 180 डिग्री का होता है, ना 180 डिग्री से कम ना उससे ज़्यादा. देन कम्स रिफ्लेक्स एंगल, विच इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री. 180 डिग्री से ज़्यादा बड़ा होगा तो उसको कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल. एंड देन कम्स फुल रोटेशन, दैट इज़ 360 डिग्री एग्जैक्टली. Now go around with your tester and draw here those things in which the tester opens like the letter L.
आर यू श्योर दे आर ऑल राइट एंगल्स, राइट। जहाँ जहाँ पे भी आप आसपास में जाइए, खिड़की, दरवाजे, टीवी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एंगल टेस्टर में जिसमें भी वो एल शेप बनता है, राइट, वो सारी चीज़ें आपको ड्रॉ करनी इसके ऊपर, राइट। आपकी टेक्स्ट बुक में ये है। मैं आपको कुछ सजेशंस दे देता हूँ। आई विल शो यू सम पिक्चर्स विच यू कैन ड्रॉ। यू कैन ड्रॉ अ डोर, अ बुक, you can draw a eraser, you can draw postcard, you can draw computer, you can draw TV, whatever you want to draw you can draw here. Practice time. Look at the angles in the picture and fill in the table. First one is done for you. सीज़र के आगे जो एंगल बन रहा है उस एंगल के लिए इट इज़ लेस देन राइट एंगल, राइट। वो मोर देन राइट एंगल है या लेस देन राइट एंगल है या राइट एंगल है, उसमें आपको टिक करना है। सेकेंड पिक्चर देखेंगे, इट इज़ अ पिक्चर ऑफ आर्म, हाथ का पिक्चर। वहाँ पे एक ऐसे मार्क भी बना हुआ है एंगल के लिए, राइट, तो इट इज़ राइट एंगल। नेक्स्ट पतंग का एक कॉर्नर, काइट का एक कॉर्नर है, इट इज़ राइट एंगल। उसके बाद मोर देन राइट एंगल, उसके बाद एक और है विच इज़ राइट एंगल। तो ये आपको अपनी टेक्स्ट बुक में भी कंप्लीट कर लेना है। सुखमन मेड दिस पिक्चर विथ सो मैनी एंगल्स। लुक एट दिस पिक्चर केयरफुली, इट हैज़ सो मैनी एंगल्स। So use color pencils to mark right angles with black color, angles which are more than a right angle with green color. More than right angles are obtuse angles, right, and angles which are less than right angle with blue color, right. जो obtuse है उसको green करना है, जो acute है उसको blue करना है और right angle को black करना है। राइट एंगल को ब्लैक करना है, ऑब्ट्यूज एंगल को ग्रीन करना है एंड जो एक्यूट एंगल है उसको ब्लू करना है। तो इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे एंगल्स हैं। ओके, आई विल शो यू द पिक्चर, अनदर वन। सी हियर, आई हैव रिटन wherever there is a acute angle I have written A, which you are supposed to mark with black. Then obtuse angle को मैंने O लिखा है, which you are supposed to mark with green pencil color. And exactly R जो है वो black कलर से, आपको R वाले जो है वो black कलर से करना है, acute वाले जो है वो blue कलर से करना है और जो obtuse वाले हैं वो green कलर से करना है। Draw anything of your choice around the angle shown. Also write what kind of angle it is. Right? जो first one है वो लेस देन राइट एंगल है, acute एंगल है, राइट। उसके ऊपर एक मगरमच्छ ड्रॉ कर दिया गया है, राइट। आप स्नेक भी ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी, मतलब एनीथिंग यू लाइक, आप जो चाहे ड्रॉ कर सकते हैं। आई विल गिव यू सम आइडियाज़। ये सेकेंड वन जो राइट एंगल है, राइट, उसके लिए हम मैंने डाइस ड्रॉ किया है। यू कैन ड्रॉ एनीथिंग एल्स यू वांट। थर्ड वन देख लेते हैं, रूफ ऑफ ए हट। देखो यहाँ पे रूफ में वो यूज़ कर लिया हमने उस एंगल को, इट इज़ राइट एंगल। नीचे एक ऑब्ट्यूज एंगल है, मोर देन राइट एंगल, चेयर ड्रॉ कर दिया हमने। उसके बाद एक और एक्यूट एंगल है, राइट, लेस देन राइट एंगल वाला, उस पर हम आइसक्रीम कोन ड्रॉ कर सकते हैं। और उसके बाद एक और एक्यूट एंगल है, लेस देन राइट एंगल, वहाँ पर हम पेंसिल की टिप ड्रॉ कर सकते हैं। अब कुछ भी इसके आपको कुछ और ड्रॉ करना है, कुछ और ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है, देन ऑल्सो यू आर फ्री टू ड्रॉ। एक्टिविटी, नेक्स्ट इज एन एक्टिविटी। टेक अ स्क्वायर शीट ऑफ पेपर, fold it in half, fold it once more and press it. Open the last fold so that the sheet is folded in half. Take one corner
and fold it to meet the dotted line. On the paper you will find lines making a right angle, an angle less than right angle and an angle more than right angle, right? So हम लोगों ने सीख लिया है जो less than right angle है that is acute angle, और जो more than right angle है that is obtuse angle. So look for each of the angles and mark them with the different color. ये एक पेपर पे एक्टिविटी करनी है हमको, तो आप भी एक पेपर ले सकते हैं। ये जो ABCDE जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करेंगे, उसके बाद उसके अंदर लाइंस बन जाएगी, और वो जो लाइंस बनेगी वहाँ पर हमको एंगल्स जो बन रहे हैं वो एंगल हमको मार्क करना है, राइट, विद डिफरेंट कलर से, द कलर विच यू लाइक, जो आपको पसंद हो वो कलर से वो काम कर सकते हैं। जब आप उस पेपर को खोलेंगे इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, ये जो लाइंस ऐसी बन जाएगी आपके पेपर पे। तो ऑन द टॉप ऑफ इट देयर विल बी 3 काइंड ऑफ एंगल। वन इज़ राइट एंगल, जो दोनों लाइंस के मतलब जो दोनों दूसरी साइड की तरफ लाइन जा रही है वो दोनों मिला के वो राइट एंगल बनेगा। फिर एक सेंटर की लाइन भी वहाँ से पास होती है, तो वहाँ पर 2 लेस देन राइट एंगल बनेंगे, और अगर वो लेस देन राइट एंगल है तो उसको हम अक्यूट एंगल कह सकते हैं, राइट। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। हम छोटे बच्चों को हम हमेशा कहते हैं कि छोटे बच्चों को हम हमेशा कहते हैं कि ही इज़ वेरी क्यूट, शी इज़ वेरी क्यूट, राइट। जो छोटा होता है क्यूट होता है, राइट। जब हम किसी छोटे पप्पी को देखते हैं तो हम कहते हैं बहुत क्यूट पप्पी है, राइट। वैसे ही एंगल अगर छोटा है तो वो अक्यूट है, अक्यूट, राइट। छोटा है तो क्यूट है, राइट। वैसे ही एंगल्स में छोटा है तो अक्यूट है, एंड बड़ा तो ऑब्ट्यूज हो जाएगा। ऑब्वियसली आपको फिर याद रखना बहुत ईजी हो जाएगा। तो द एंगल विच इज़ लेस देन राइट एंगल इज़ अक्यूट एंगल, द एंगल विच इज़ मोर देन राइट एंगल इज़ ऑब्ट्यूज एंगल, और राइट एंगल तो जो एल शेप बनता है, ठीक है। अब याद रखना बहुत ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके लेफ़्ट साइड में एक अक्यूट एंगल बन रहा है, आपके राइट साइड एक्सट्रीम राइट साइड में भी एक अक्यूट एंगल बन रहा है, सेंटर में 4 राइट एंगल बन रहे हैं, एंड बॉटम में 2 राइट एंगल बन रहे हैं। Then there is one more activity. Can you make this angle a right angle with your hand? Try it with your hands. You can do it. An angle less than a right angle with your leg, an angle more than right angle with your arm, an angle more than right angle with your body. Try them out, it's fun. Draw them in your notebook using stick drawings like this. So look at this picture very carefully. See, in this picture you can see some birds, 2 girls talking out there. A bird is telling that I am a woodpecker. My beak is sharp because it has to cut wood. The girls are talking, hey, look at the bird, its beak has an angle less than a right angle. नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, लुक फॉर द बर्ड्स विच हैव बीक्स विथ स्मॉल एंगल्स, राइट। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे बर्ड्स हैं, उसमें कुछ बर्ड्स की बीक खुली हुई है, एंड दोज आर द बर्ड्स विथ बीक्स विथ लेस देन राइट एंगल, जो अक्यूट एंगल में है। आई विल शो यू। देखिए यहाँ पर एक बर्ड है आपके राइट साइड में, एक्सट्रीम राइट साइड में, जहाँ पे मैंने पी लिख दिया, उस बर्ड को पी करके मार्क कर दिया। देन एक दूसरा बर्ड यहाँ पर जिसको हम क्यू करके मार्क कर रहे हैं, और एक तीसरा बर्ड यहाँ पर जिसको हम आर करके मार्क कर रहे हैं। सो द बर्ड्स मार्क्ड विथ पी, क्यू एंड आर हैव बीक्स विथ स्मॉल एंगल्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द पिक्चर मार्क एंगल्स between the 2 branches. Which 2 branches have the biggest angles? आपको जितनी भी ब्रांचेस दिखती है उन सब के बीच में एक एंगल्स बन रहा है। यू कैन मार्क इट लाइक दिस। देखो यहाँ पर मैं एक मार्क कर देता हूँ। ऐसे आपको हर जगह करना है और आपको बताना है कि which 2 branches have the biggest angle. So I'll show you that both the branches. Here is the one, इसको हम B1 मतलब ब्रांच 1 करके मार्क कर रहा हूँ मैं यहाँ पर।
एंड सेकेंड ओवर हियर दैट इज़ B2, इसको ब्रांच 2 करके हम मार्क कर देंगे और फिर हम आंसर लिख देंगे। हम आंसर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे दैट branch is marked with B1 and B2 have the biggest angle. Angles in names. You know there are angles in the letters of our names too. अगर आप इस तरह से अपना नाम लिख देंगे तो उसमें भी बहुत सारे एंगल्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे सुखमन ने अपना नाम ऐसे लिखा है और वो कह रही है कि इन माई नेम देर आर 11 राइट एंगल्स, देर आर ऑल्सो 10 एंगल्स लेस देन अ राइट एंगल। उसने अपना नाम लिख के उसमें एंगल्स मार्क किए हैं और उसमें कितने राइट एंगल है और कितने लेस देन राइट एंगल है वो फाइंड आउट किए हुए हैं। जैसे कि फर्स्ट S लेटर है, उसमें 4 राइट एंगल है, U में 2 राइट एंगल है, देन K में 1 राइट एंगल है और 2 लेस देन राइट एंगल है। उस तरह से उसने सारे मार्क कर दिए और उसने कहा कि उसके नाम में 11 राइट एंगल्स है और 10 लेस देन राइट एंगल है। उसके बाद में एक एक्सरसाइज है, राइट 3 नेम्स यूजिंग स्ट्रेट लाइंस एंड काउंट द एंगल्स। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप अपना नाम फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में अपने फादर पापा का नाम और थर्ड वाले में मम्मी का नाम लिख देंगे। फिर जो नेक्स्ट कॉलम है नंबर ऑफ़ राइट एंगल्स, तो आप उस नाम में कितने राइट एंगल्स है वो लिखेंगे। तीसरे वाले कॉलम में उन हर एक नाम में कितने मोर देन राइट एंगल है वो लिखेंगे और उसके बाद कितने लेस देन राइट एंगल है वो लिखेंगे। आप अपने भाई बहनों का भी नाम लिख सकते हैं, राइट, जो भी मतलब आपके फ्रेंड्स हो, जो भी है आपके फ्रेंड्स का नाम लिखिए, अपने दोस्त अपने भाई बहनों का नाम लिखिए, या फिर आपकी खुद के ही अगर बहुत सारे पेट नेम है तो वो भी लिख सकते हैं, राइट। इट्स आई एम लीविंग इट ऑन यू। तो अपने नाम लिख दीजिए, उसमें कितने राइट एंगल है वो लिख दीजिए, उसमें कितने मोर देन राइट एंगल है वो लिख दीजिए और कितने लेस देन राइट एंगल है वो लिख दीजिए। सो दैट्स ऑल।